training. Next are the injuries to spine and spinal cords. Again, there are different types of injuries which occur in spinal cord or spine as a result of a trauma, which include concussion, compression, pithing, and laceration. Now, discussing about spinal concussion, it is the transient loss of the function of the spinal cord following a severe injury to the spinal cord. Recovery is within hours, which can extend to few days, and it occurs due to a severe blow to the back, fall from the height, or road traffic और रेलवे एक्सीडेंट्स में जो है ना उसमें ज्यादातर स्पाइनल कंकशन होती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, देयर इज अ ट्रांजिएंट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और ऐसा ऐसा रिकवरी हो जाती है। Now, what is a railway spine or traumatic spinal neurasthenia? It occurs basically in road traffic accidents or railway accidents और mine workers में हो सकती है। होता क्या है इसमें? There is only a bruise or sprain production without external injury to the spine. It is medical. Its medical legal importance is that it leads to the claim of compensation. होता क्या है, सिर्फ ब्रूज हो जाता है या स्प्रेन प्रोड्यूस हो जाती है स्पाइन में आपकी, और ज्यादातर मोस्ट कॉमनली ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या रेलवे एक्सीडेंट्स में या माइन वर्कर्स में होती है। और इसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें आप जब क्लेम करते हैं तो कंपनसेशन के लिए जो है ना, क्लेम ऑफ कंपनसेशन जो है ना वो आप नहीं कर सकते हैं। Symptoms of this neurasthenia are backache, insomnia, and there is weakness of limbs. There is sexual asthenia or there is incontinent bladder जो है ना वो हो सकता है, और and there is also presence of tingling sensation and burning sensation. Complete recovery में अगर unless the cord is lacerated, ठीक है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता ये नहीं रिकवरी हो जाती है। अगर सिर्फ ब्रूज है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो जाती है, लेकिन अगर लेसरेशन हो जाए तो फिर जो है ये इसमें रिकवरी नहीं है। Next type of important injury is whiplash injury. It is momentary, basically dislocation of vertebra, cervical vertebra at C4 to C6 level. It is due to the blow on chin, eyebrow, striking the head against the windscreen. And basically, it usually it occurs in road traffic accidents, and it results as due to hyperextension of the head, ठीक है। होता क्या है, आपके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या डायरेक्ट ब्लो ऑन चिन में होता ये है कि देयर इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हेड जो है अकर्स, और उसकी वजह से क्या होता है, मोमेंटरी डिसलोकेशन हो जाती है सर्वाइकल वर्टिब्रा की एट C4 to C6 लेवल, व्हिच इज नोन एज whiplash इंजरी। Next is the dislocation of the spinal cord. The commonest size जो है ना जहाँ पर dislocation होती है is C4 to C6 level vertebra पे होती है। इसके अलावा T3 to T6 vertebra पे भी होती है dislocation, और इसके अलावा T10 to L3 vertebra पे dislocation होती है। If the level of the compression is above C4, then the death is immediate due to the paralysis of respiratory center of respiratory muscles. So अगर C4 से ऊपर जो है वो डिसलोकेशन हो जाए तो क्या होगा, सडन डेथ हो जाती है, क्योंकि जो है ना आपका जो है आपका रेस्पिरेटरी सेंटर वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है, उसका पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है एंड सडन डेथ ऑफ द पेशेंट अकर। Next, what is pithing? It is the process of killing by pushing a needle in the nape of the neck between C2 to C3 level. Injuries occur basically at medulla and upper cervical cord, contains respiratory center, and ये ज्यादातर infanticide में जो है यूज होती है। C2 to C3 लेवल में क्या है आपका जो है ना वो respiratory center होता है, जिसमें एक नीडल जो है ना इंजेक्ट की जाती है और उसका पैरालिसिस हो जाता है और ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, और बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये इन्फेंटिसाइड के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आर द इंजरीज ऑफ द चेस्ट। First type of injury is the flail chest or collapse of the chest, which occur as a result of a trauma or accident.
It occurs when at least 3 successive ribs are fractured at 2 points, creating a floating segment of the chest wall. The floaty segment is sucked inward during inspiration, and dyspnea, cyanosis, pneumonia, and injury to heart occur. ठीक है, होता क्या है कि आपकी जो है ना 3 सक्सेसिव रिब पे जब जो है ना यानी फ्रैक्चर हो एट 2 सक्सेसिव पॉइंट्स, ठीक है, यानी 2 पॉइंट्स पे 3 रिब्स जो है फ्रैक्चर हो जाए तो क्या हो जाता है, वो फ्लोट करना शुरू हो जाती है, यानी उसका बाकी रिब्स यानी बाकी जो है मस्कुलर मूवमेंट जो है वो जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है वो वहां पे स्टॉप हो जाती है, और जब ब्रीदिंग होती है तो वो इट इज सक्ड, बेसिकली दिस सेगमेंट इज सक्ड इनवर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, एंड इट कॉजेस डिस्निया, cyanosis, pneumonia, and it can also cause injury to heart. Next are what type of injuries to the abdomen take place as a result of trauma. In case of abdominal injury, the trivial injury like abrasions can be found externally, but gross and fatal injuries are frequently present without any external sign of injury or abrasions. The abdominal wall may allow the mesentery, gut, stomach, and liver to be pinned and crushed across the spine with severe internal hemorrhage. जब भी आपका एक्सीडेंट हुआ या कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हुई है, ट्रॉमा कॉज होता है एब्डोमेन पे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, या कोई ब्लड ट्रॉमा हो एब्डोमेन पे, तो आपको एक्सटर्नली में भी आपको कुछ भी ना मिले या आपको सिर्फ जो हल्की सी एब्रेशंस मिले, लेकिन इंटरनली क्या है हो सकता है, इंटरनली द मेसेंट्री, गट, स्टमक एंड लिवर कैन बी pinned to and crashed across the spine. So उनको इंजरी जो है आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स है एब्डोमेन में वो जो है ना they can be subjected to the injury and they can be crashed with causing severe internal hemorrhage. So whenever there is history of injury to abdomen, the patient should be kept under observation, and the most important viscera to be injured are spleen and liver. क्योंकि अगर स्प्लीन या लिवर में जब इंजरी कॉज होती है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर होती हैं, और देयर इज मैसिव इंटरनल हैमरेज कैन अकर इन द एब्डोमेन विदाउट कॉजिंग एनी एक्सटर्नल इंजरी टू द एब्डोमेन, ठीक है। सो आपको जब भी कोई ब्लंट ट्रॉमा की या एब्डोमिनल इंजरी की कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या रेलवे एक्सीडेंट में एब्डोमिनल इंजरी का कोई पेशेंट आए तो द पेशेंट शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फॉर सम टाइम टू रूल आउट दिस टाइप ऑफ इंटरनल इंजरी। अब अगर स्प्लीन की इंजरी हो तो क्या क्या कॉजेस हो सकती हैं, जो है ना उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। द स्प्लीन इज द मोस्ट ससेप्टेबल टू इंजरी ड्यू टू द वीकनेस ऑफ द सपोर्टिंग टिश्यूज, थिननेस ऑफ द कैप्सूल एंड एक्सट्रीम फ्राइबिलिटी ऑफ इट्स पल्प, ठीक है। जब भी ब्लंट ट्रॉमा होगा, whenever the abdomen is subjected to blunt trauma, the spleen is the most susceptible organ to be injured because it has weak supporting tissues, the capsule of the organ is thin, and the pulp of the organ is extreme friable, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें इंजरी जो है सबसे ज्यादा हो सकती है। If it is ruptured, it can be ruptured. Causes क्या है अब इसकी यानी रप्चर की? It can be ruptured by fall or by a direct blow on the abdomen or due to the crush injury in road traffic accidents. इसके अलावा spontaneous rupture can also occur due to malaria, leukemia, typhoid और कालाजार फीवर, ठीक है, इनमें भी rupture हो सकता है इन diseases में भी। Next are the liver injuries. The susceptibility of the liver injury is due to its large size, central location, and relatively friability. The causes of the rupture of liver is a fall, blow, or a direct kick on the abdomen, ठीक है। Large size है, central location है, और जो ना टिश्यू जो है is relatively friable, जिसकी वजह से जो है इंजरी हो सकती है लिवर को, and it is susceptible to injury, ठीक है। और इसमें जो है ना इंजरी किस उसमें हो सकती है, कॉजेस क्या है, डायरेक्ट फॉल में हो सकती है, डायरेक्ट ब्लो ऑन द एब्डोमेन उसमें हो सकती है, डायरेक्ट किक ऑन द एब्डोमेन कैन कॉज लिवर इंजरी। Crush injury by road traffic accident which may not leave external mark on the abdomen. The death occurs due to shock and hemorrhage. Sometimes bleeding occurs between the capsule and the liver, which causes subcapsular hematoma, and serious symptoms became apparent only when the capsule ruptures.
ठीक है। होता क्या है बेसिकली रूट ट्रैफिक एक्सीडेंट या डायरेक्ट ब्लो या डायरेक्ट ब्लंट ट्रॉमा टू द एब्डोमेन जो है ना, उसमें ये होता है कि आपके जो एक्सटर्नली है जो आपका इट विल जो है एब्डोमेन, उस पर कोई मार्क नहीं आएगा, कोई ब्रूज, कोई लैसरेशन, कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन इंटरनली द डेथ ऑफ द पर्सन अकर ड्यू टू द शॉक एंड हैमरेज और बिकॉज ऑफ द सिवियर इंजरी टू द लिवर। और इसमें जो है ना ब्लीडिंग जो है ना हैवी ब्लीडिंग अकर्स बिटवीन द कैप्सूल एंड द लिवर कॉजिंग सब कैप्सुलर हेमाटोमा। और जो है ना सिम्टम तब अपीयर होंगे जब कैप्सूल जो है रप्चर कर। जी जी बेटा, एनी क्वेश्चन? सो इसके साथ आप लोगों का रीजनल इंजरीज जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? एनी क्वेश्चन बेटा? आप चैट बॉक्स में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं, आई विल आंसर, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों की जो है रीजनल इंजरीज का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग फ्रैक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स और वो जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।